So here I'm going to show you a PPT through which you can understand the Photoshop in a better manner. Okay. So this chapter is about the introduction to the Photoshop. And here we are going to discuss the version CS6. Now what does it mean, CS6? CS means Creative Suite, and this is the 6th version, that is why it is known as CS6. Okay, its full form is Creative Suite. After that, why we use Photoshop? You can see there are many beautiful pictures that is looking very different from the normal picture. You can see it in the either in the marriage album or it in the catalogs, right? And then there are so beautiful pictures are there in the posters too, which is not very common. So to create these kind of pictures, what do we need? We need a software so that we can edit our normal pictures and make it much more attractive. Okay, so these are the just common pictures, but due to editing, it looks very pretty. So what do we need to do to make it more attractive? We need a editing software. So here we are going to use the Photoshop software. Okay. So in Photoshop, this is the logo of the Photoshop CS6. In Photoshop, it is a graphic editing software. Graphics means images. We can edit all the images using this program, and we are going to use it either to edit a picture. Edit means we are going to increase the brightness, we are going to decrease the brightness, or any kind of other changes, or to modify as well as create the new pictures. That means मेरे पास originally एक picture थी, right? मैंने उसमें क्या किया, उसका एक part कट करके उसी के क्लोन बना दिया उसमें, है ना? या फिर मैंने क्या किया, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर दी, अगर वो शेड में होगी पिक्चर क्लियर नहीं होगी. या फिर कई बार हम क्या करते हैं, सनलाइट में पिक्चर क्लिक करते हैं, है ना, तो वो ज्यादा लाइटनिंग की वजह से भी क्लियर नहीं आती, तो फिर हम वहां पे यूजिंग दिस इसकी ब्राइटनेस कम भी कर सकते हैं. So there are many more features that we can use using the Photoshop software through which we can edit our pictures. Okay, and this Photoshop is made by Acrobat, and this is the logo of the company Acrobat Systems. Okay. So this is the company who had created this software, Adobe Photoshop. Adobe Systems. Clear? Adobe System had developed this Adobe Photoshop. Then it is widely used by the photographers. Why photographers are going to use it? Because उनका main purpose ही यही है कि simple pics click करना and then हमारे precious days की जो pictures है उनको special बनाना. राइट जैसे कोई भी फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो, इधर मैरिज हो या बर्थडे पार्टीज हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, फोटोग्राफर को हायर कर लेते हैं सो दैट हमारी जो पिक्स हैं वो अच्छे से क्लिक कर पाए, और क्लिक करने के बाद उसको एडिट करके हमारे लिए एल्बम भी क्रिएट कर दे, है ना. तो फॉर दिस पर्पस फोटोग्राफ ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं फोटोग्राफर्स, सो दैट हमारे पिक्चर्स को वो क्लिक जो कर रहे हैं उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके. बिकॉज अगर वो पिक्चर्स नॉर्मल सी होंगी, है ना, तो फिर तो हम फोटोग्राफर को हायर करेंगे ही नहीं, हम कहेंगे हम तो अपने मोबाइल में ही क्लिक कर लेते हैं, सेम पिक्चर ही तो आ रही है, राइट. सो उसको डिफरेंट बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, फोटोज को एडिट करते हैं, ठीक है. एंड फॉर दैट पर्पस दे आर नीडिंग दिस फोटोशॉप सॉफ्टवेयर. उसके अलावा आर्टिस्ट, जरूरी नहीं है कि ऑल द आर्टिस्ट आर गोइंग टू मेक द ऑफलाइन पेंटिंग्स ओनली. सम आर यूजिंग द डिजिटल मेथड ऑल्सो. They are creating the paintings in a digital mode. So for that, they are going to need the Photoshop software so that they can create a attractive image using it. And with that, people who are handling graphics, either a software developer, either a website developer, right? तो उसमें उनको एक अच्छी images की जरूरत पड़ती है ना. अगर हम कोई वेबसाइट खोले और वो बहुत बोरिंग सी हो, सिर्फ टेक्स्ट आए, कोई इमेज ना आए, हम दोबारा नहीं खोलेंगे, है ना. हमें वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, यूजर फ्रेंडली नहीं लगेगी. बट अगर वही कोई गेम है या फिर, है ना, उसमें अच्छी इमेजेस हैं, अच्छे उन्होंने ग्राफिक्स यूज किए हैं, तो हम वो चीज हमें अट्रैक्ट करेगी. बिकॉज ऑफ दैट द पीपल हु आर हैंडलिंग द ग्राफिक्स वो इस सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं यूज करने के लिए, सो दैट वो अपनी चीज को अट्रैक्टिव बना सके, है ना. इंप्रेसिव होगी तभी तो लोग यूज करेंगे ना. दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर. आफ्टर दैट इट इज वाइडली यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट द. अब क्या क्या इसके यूजेस हैं? देयर आर सम मैसेजेस. ओके, या यस बेटा, क्रिएटिव, हाँ, गेम्स में भी यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है.
ओके, सो देन कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू सी द फील्ड्स वेयर वी आर गोइंग टू यूज इट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैगजीन कवर्स. बहुत सारी मैगजीन ऐसी हैं जो किड्स के रिलेटेड है, जो वुमेन्स के रिलेटेड है, जो मेंस के रिलेटेड है, वो पब्लिश होती है, राइट? और कुछ मंथली मैगजीन होती है, कुछ वीकली मैगजीन होती है. बट हर एक मैगजीन में एक समथिंग स्पेशल जो फैक्ट होता है, दैट इज देयर कवर पेज. अब वो जो मैगजीन का कवर पेज है, जितना अट्रैक्टिव कवर पेज होगा उतनी ही ज्यादा उस मैगजीन की जो है सेल इंक्रीज हो जाती है. रीजन, बिकॉज हम किसी भी शॉप पे जाके पूरी बुक, पूरी मैगजीन नहीं पढ़ सकते, बट हम उसका कवर पेज देख के ही हम उस मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसका कवर पेज देख के ही उसको जज कर लेते हैं. ओके, इसमें ये कंटेंट होगा, ये इसमें फीचर्स होंगे, this we are going to know through this magazine, right? So that cover page should be attractive. That's why cover page को डिजाइन करने के लिए मैगजीन्स में ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. उसके बाद आता है बुक कवर. अब ये मैंने आपकी ही बुक का कवर लिया है ना, आपकी ही कंप्यूटर बुक का कवर है. इसमें क्या है, देखो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसके अलावा कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं और छोटी 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 पिक्चर्स को कंबाइन किया हुआ, पब्लिशर का नाम दिया हुआ इसमें की फीचर्स लिखे हैं. जैसे सेपरेट आपको बुकलेट मिलती है जिसमें वर्कशीट्स हैं, है ना. तो उसके अलावा इसमें ये भी दिया हुआ है कि ये जो पूरी बुक है इसमें विंडोज 7 हमने यूज किया और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जो है 13 यूज किया. मीन्स सारा कंटेंट को कंबाइन करने के लिए और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और सब कुछ, जैसे टेक्स्ट है, इमेजेस है, ऑल द स्टफ उन्होंने कंबाइन करके डिजाइन करने के लिए बुक कवर को फोटोशॉप यूज किया. ठीक है. देन नेक्स्ट इज वेडिंग एल्बम्स. अब वेडिंग एल्बम्स में जब क्लिक करते हैं, सम पिक्चर्स आर दैट नॉट दैट अट्रैक्टिव, सो उसको बाद में वो एडिट किया जाता है. लाइक कुछ समटाइम जब पिक्स क्लिक कर रहे हैं तो हमारे बाल ठीक नहीं हुए, है ना, कॉम्बिंग नहीं सही से हुई या कुछ भी ऐसा रीजन, बाद में फोटोग्राफर्स जो होते हैं क्या करते हैं, उसको एडिट कर देते हैं सो दैट जब वो एल्बम पे प्रिंट हो तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस आए, है ना. That's why they are using this Photoshop software, ताकि जो भी क्लिक करने के टाइम पे उनकी कमियां रह गई थी वो उसको ओवरकम कर सके, रिमूव कर सके. Yes, Lavish, are you listening, beta? Okay. Okay. Then we are having the brochures also. Why we are using brochures? Can anybody tell me? What is the use of brochures? Where you can see the brochures? So come on, now tell me. Yeah, that is used for the advertisement purpose. Very nice. Yeah, that looks beautiful for the advertisement in the phone guides. Very nice. So brochures जो होते हैं हमें basically advertisement purpose के लिए या guidance purpose के लिए use किए जाते हैं, so that हमें उसके सारे features के बारे में जो उसमें quantities या qualities जो भी available है वो हमें उसके थ्रू पता चल जाए. सपोज एक चीज की एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसके डिफरेंट डिजाइन्स ब्रोशर्स में प्रिंट कर सकते हैं, है ना, और उसके की फीचर्स हम दे सकते हैं यहाँ पे कि दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज बेनिफिशियल फॉर दिस रीजन, राइट. तो इस तरह से हम जो एडवर्टाइजमेंट का वे है हमारा, ओके यू आर रीडिंग द स्क्रीन, ठीक है विश. ओके, सो इन दिस वे वी कैन मेक आवर एडवर्टाइजमेंट मोर अट्रैक्टिव, ताकि वो रीच करे टू द ईच एंड एवरी पर्सन, right? So these are the places, these are the fields where we are going to use the Photoshop for designing these things, okay? After that, Photoshop images, what kind of images are there in the Photoshop? They are the bitmap images. Bitmap images matlab they are made up of the tiny pixels. Now what does that mean? What are the pixels? So pixels are the tiny square that are going to form an image. सो बेसिकली कोई भी इमेज जब बनती है फोटोशॉप में, बेसिकली दैट आर द बिटमैप इमेजेस, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे टाइनी स्क्वायर्स होते हैं. अब जितने ज्यादा टाइनी स्क्वायर्स होंगे, दैट मीन्स जितनी ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही ज्यादा उसकी क्वालिटी हो जाएगी, राइट. अब ये जो मैंने एक कार्टून कैरेक्टर की पिक्चर ली है, ये इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है. जूम करने पर क्या हुआ, मुझे उसके एक पिक्सल जो थे वो नजर आने लग गए. दैट मीन्स इसकी क्वालिटी इतनी बेटर नहीं थी. But using Photoshop, you can enhance the quality also. No, we can change the color mode. We can change the color mode. ठीक है, जैसे ग्रे स्केल मोड भी रख सकते हैं, CMYK भी रख सकते हैं, तो कलर मोड हम चेंज कर सकते हैं. बट इमेजेस जितनी भी बनती हैं, चाहे वो यूजिंग फोटोशॉप और यूजिंग एनी अदर, दे आर कंसिस्टिंग ऑफ द पिक्सल्स. ओके, सो दे आर कंसिस्टिंग ऑफ पिक्सल. बिकॉज ऑफ दैट पिक्सल उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है.
अब जितनी ज्यादा पिक्सल होंगे उतनी ही क्वालिटी उस पिक्चर की बेटर होगी, और जितनी कम पिक्सल्स होंगे दैट मीन्स जूम करने पे हमारी पिक्सल जो है ब्लरी होनी शुरू हो जाएगी, इट मीन्स पिक्चर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट number of pixels are going to decide the resolution and also the quality of the picture. Okay, after that, now who had developed this? So the fact is Adobe Photoshop का जो first version आया था, that is known as display program. So this is the person, this is the picture of that famous personality, Thomas Knoll. In 1987 he had developed the first version of the Photoshop, and that was known as display program. And later on उसकी development होती गई, and now we are with the CS6 version. Okay. So then there are some key features about the Photoshop CS6. We are going to discuss that now, okay? Features of Photoshop. User-friendly interface. Now, what does that mean? User-friendly interface. Who is going to tell me about the user-friendly interface? Okay. Why CS6 is user-friendly? Anybody? Okay, yeah. Okay. Yes, we can picture add कर सकते हैं, edit कर सकते हैं. It is not very complex. Very good, Ananya. It's not very complex, easy to use है, it's attractive. Yes, all the facts are there. That means why it is user-friendly interface, because anybody can use it in a very easy way, right? So you don't need to be a professional for using this software. Yeah, there are no problem occur when user are going to use it for the first time, because it's very easy to use. That's why it is known as user friendly, because a new user can also use this Photoshop feature, because इसमें graphics हैं, right? GUI based है, ऐसा नहीं है कि हमें commands type करनी पड़ती हैं जैसे कि basic में करते थे हम, है ना? So it's not that कि हमें command type करनी पड़ेंगी, it's GUI based, that is why it is easy to use. Okay, the next feature about it is we can retouching and transforming of photos are easily possible. That means जैसे हम अपने mothers को देखते हैं या any other person, है ना, तो क्या करते हैं, touch up करते हैं कहीं भी जाने से पहले. What does that mean? Some applying some makeup or some products, right? So in the similar way आप अपनी pictures के बीच में retouching कर सकते हो, उसको touch up दे सकते हो, उसको और ज़्यादा better बना सकते हो. अगर आपकी picture shade में आई है, थोड़ी सी उसमें shadow पड़ रही है, तो आप उसकी brightness increase कर सकते हो, तो वो ज़्यादा better हो जाएगी, है ना? Transform, rotate वगैरह कर सकते हो, उसमें कुछ और changes कर सकते हो. These kind of changes easily इसमें possible होते हैं. ठीक है? That's why number of people are there who are going to use this software. Then the next feature is you can open and save the JPG documents up to 65,535 pixels in width or height in the Photoshop. That means ये quality जो है pictures की काफी high है, and that number of pixels is means उसकी resolution बढ़ गई है. It means जब हम उसको picture को एक Photoshop में जो picture इतने अच्छी number of pixels की हमने create की है, either we are going to view it on our mobile phones or we are going to display it on our LCDs or LEDs, वो picture blurry नहीं होगी, वो sharp image हो गई, ठीक है, और उसको हम create कर पाएंगे, view कर पाएंगे, zoom कर पाएंगे, all the things we can do easily. ठीक है बेटा? Then है next is Photoshop contains many new 3D features, because later on अपडेशंस आते गए तो इसमें new features हर रोज इसमें ऐड हो रहे हैं. अब कुछ 3D features भी इसमें ऐड हो चुके हैं. We can add as many as layers as you need it. अब layers क्या होती है? Layers means एक चीज के ऊपर अगर हम दूसरी चीज लगा दे तो वो layers बन जाती है, है ना? आप सबने पैटी खाई होगी कभी भी, आलू पैटी जो हम नॉर्मली देखते हैं मार्केट में, है ना? मे बी अभी नहीं खा रहे हो बट पहले खाई होगी, है ना? या तो उसमें क्या होता है, देयर आर सो मेनी लेयर्स, है ना? क्रिस्पी क्रिस्पी से लेयर्स होते हैं और उसके अंदर वो स्टफ्ड किया होता है. सो वो लेयर्स कैसे हैं? इसी तरह से हम फोटोज की भी लेयर्स बना सकते हैं. दैट मीन्स एक लेयर बनाई, एक चीज क्रिएट की, उसके ऊपर दूसरी लेयर रख दी, है ना? सपोज दैट मैंने एक लेयर ली, एक सिंपल पेपर है ना, ट्रांसपेरेंट पेपर सपोज करते हैं,
हाँ, उसमें भी यही होता है। या देयर आर मेनी ईटेबल्स जिसमें ऐसे लेयर्स बनी होती है, वेरी नाइस। इवन केक्स में भी बनी होती है ना, क्रीम लगा के उसके ऊपर दूसरी लेयर रख देते हैं, राइट? या सो इन द सिमिलर वे हम फोटोशॉप में भी लेयर्स बना सकते हैं। अब लेयर्स बनाते क्यों हैं? लेयर्स बनाने से फायदा हमें ये होता है कि हम एक लेयर हटा भी दें तो पिछले वाली खराब नहीं होती, है ना? बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक सिंपल लेयर ली, ठीक है, उसमें मैंने सपोज एक बैकग्राउंड डिजाइन किया, स्काई कलर का ले लिया, उसमें कुछ बर्ड्स बना दिए। अगली लेयर ली, उसमें हाउस बना दिया। तीसरी लेयर ली, उस हाउस के आगे रोड बना दी और कार्स बना दी। बाद में मैंने देखा कि ये जो कार्स है ना अच्छी नहीं लग रही हैं, कुछ और होना चाहिए था। हाउस के आगे रोड नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि गार्डन होना चाहिए था, है ना? सो मैंने क्या करना है, पूरी पिक्चर को डिलीट नहीं करना, सिर्फ वो पर्टिकुलर कार्स वाली लेयर को हम डिलीट कर देंगे और लेयर्स आ जाएंगी। हाँ, हम ये प्रैक्टिकली भी करेंगे, जब लेयर्स के हम टॉपिक करेंगे तो प्रैक्टिकली भी आई एम गोइंग टू क्रिएट मेनी लेयर्स so that you can understand this concept in a deep way. Okay, so yeah, layers का बेसिकली अभी आपने क्या समझना है कि एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आने से ये फायदा होता है कि पिछले वाली लेयर स्पॉइल नहीं होती। अगर पहली वाली लेयर खराब भी हो जाएगी, हम उसको डिलीट भी कर देंगे तो पिछली वाली लेयर एज इट इज रहेगी, ठीक है? ओके, एक सिंपल एग्जांपल इसकी मैं देती हूँ। आप रेन हो रही है, सपोज दैट, ठीक है, इट्स अ रेनी वेदर एंड यू आर गोइंग आउट एंड यू आर वेयरिंग अ रेन कोट। तो क्या आपके इंटरनल क्लोथ्स खराब हो जाते हैं, गिले हो जाते हैं अगर रेन कोट अच्छे से वेयर किया हो तो? नो, वेरी गुड, वेरी गुड। सो सिमिलर वे से हमारे पास ये लेयर्स हैं। एक लेयर के ऊपर जब हम दूसरी लेयर रख लेते हैं तो ऊपर वाली लेयर अगर हम डिलीट भी कर देते हैं या स्पॉइल भी हो गई तो हम उसको हटा भी दें तो पिछले वाली लेयर्स एज इट इज रहेंगी, ठीक है? उनके कंपोनेंट्स में, उनकी पिक्चर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस। ओके, देन वी कैन क्रिएट ग्राफिक्स for the web-based applications also with the reduced file size, therefore helps us in faster loading of the website. इसका मतलब जरूरी नहीं है कि पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारी तो उसका फाइल साइज भी हमें ज्यादा ही रखना पड़ेगा। नो, बिकॉज जब भी हम नेट पे यूज करते हैं, देखते हैं ना, अगर कोई पिक्चर का साइज बहुत ज्यादा होता है, वो डाउनलोडिंग होती रहती है ना डिस्प्ले करवाने के लिए, तो हम फेडअप हो जाते हैं कि रहने दो, ये साइट नहीं विजिट करनी, इसकी जो है पिक्चर क्वालिटी वो इतनी ज्यादा है कि वो डाउनलोड ही नहीं हो पाती है। सो हम प्रेफर करते हैं जो इजी टू यूज हो एंड दैट शुड बी क्विक इनफ, है ना, सो दैट हम फटाफट उसको देख सके क्या क्या इसमें कंटेंट है। सो इसके लिए हमारे वेब पे वेबसाइट जब बनाते हैं तो उसके लिए हम इसके रिड्यूस्ड फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं ताकि अपलोडिंग भी इजी हो जाए और जो पर्सन जो उसको व्यू कर रहा है उसके लिए डाउनलोडिंग भी फटाफट हो जाए। सो ये प्रोसेस को फास्ट कर देता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर द रिड्यूस्ड फाइल साइज। अब सिमिलर वे से जब हमें किसी को कोई फाइल भेजनी होती है, हम क्या करते हैं, अगर फाइल ज्यादा बड़ी है उसको कंप्रेस कर लेते हैं, जिप फाइल बना देते हैं। व्हाट हैपन विद दैट, उसका फाइल साइज रिड्यूस हो जाता है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो है जल्दी अपलोड हो जाती है और दूसरी तरफ से भी अ पर्सन कैन इजीली डाउनलोड इट, है ना, टाइम जो लगता है वो टाइम कंजप्शन जो है कम हो जाती है उसकी वजह से, एंड दैट्स व्हाई जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। So these are the key features about the Photoshop. Is that clear, beta? Are you clear with all these things? There is Gautam, the difference between these two versions are just their features. Because obviously जब न्यू एक अपडेशंस आती हैं तो उसमें न्यू फीचर्स आते हैं, है ना, चाहे वो हम फोन के वर्जन ले लें या फिर विंडोज के वर्जन ले लें, तो हर एक न्यू वर्जन के साथ कुछ कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते जाते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इन टू वर्जन में भी यही डिफरेंस है कि उनके फीचर थोड़े से एडवांस हो जाएंगे जो लेटेस्ट वर्जन आएंगे। ओके, लास्ट वाले में क्या है बेटा, जैसे ग्राफिक्स हमने क्रिएट की, अब एक पिक्चर है, सपोज आपने पिक्चर सेंड करनी है अपने टीचर को, एक एक्टिविटी की है, उसकी पिक्चर क्लिक करके भेजनी है, ठीक है, पिक्चर का साइज है 100 MB क्योंकि आपने DSLR कैमरा से उसको पिक्चर क्लिक करी है ना, 100 MB की पिक्चर होगी एक। अब आप व्हाट्सएप पे तो सेंड ही नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि व्हाट्सएप में तो लिमिट आ गई, कितने MB की फाइल सेंड ही नहीं हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम फोटोशॉप में कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो हम उसका फाइल का साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं। वही पिक्चर को हम 10 MB में कन्वर्ट कर दे तो 10 MB तो इजीली सेंड हो जाती है व्हाट्सएप पे, है ना। इसलिए यहाँ पे हम फाइल का जो साइज है वो रिड्यूस कर देते हैं ताकि जब वेबसाइट पे अपलोड करनी है तो वो जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए, ठीक है, क्लियर नाउ अनवे?
वो बेटा इसमें ऑप्शन है रिड्यूस फाइल साइज के, तो वहां से हम उसका फाइल साइज इजीली डिक्रीज कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। ओके, जैसे हम कंप्रेस करते हैं ना, इन द सिमिलर वे हम इसमें भी कंप्रेशन कर सकते हैं, एक फाइल को कंप्रेस करके उसका फाइल साइज रिड्यूस कर देते हैं।